This weekend, UFC Macau, Song Yudong versus Davison Figueiredo. I'm going to predict all the fight on a main card. और आज होने वाला है पूजा तोमर वर्सेस शी मिंग का फाइट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड कल जो फाइट हुआ है कोरेंग एंड रविंद्र दांत का, जो हम लोग ने विन निकाला है, ये बॉय, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे पर लास्ट के वीडियो में, लास्ट पार्ट में. लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइट कार्ड. First fight on the main card, Alex Perez versus Sumudre Ji. This Samudra something Ji is from Tibetan, so I hate him anyway. No, bro, I'm just kidding. No, talking about this fight, I think Alex Perez will win the fight. अभी something जो जी है, he Tibetan guy, like इसके बारे में बात करें, he won like last 2 fights अपना, बट चार्ल्स जॉनसन से फिनिश हो गया था. एंड एलेक्स परेज ने अपने लास्ट फाइट में चार्ल्स जॉनसन का हाइप को डीरेल कर दिया है. टॉकिंग अबाउट द एलेक्स परेज, ही इज़ लाइक रियली गुड बॉक्सर, रेंज में अच्छा फाइट करता है, गुड शॉट, अपर कट, शफल अपर कट्स एंड एवरीथिंग. बट दिस टिबेटन गाय इज 19-7 in his fights. Less experience, बहुत काफ़ी young है अभी, and I think Perez in his prime, not in a prime age, but obviously he's fighting with like a lot of good opponent, काफ़ी अच्छा experience है, and I think he will smoke this Tibetan guy. Please do it for me, please Perez. No, just kidding, man. Anyway, just kidding, guys. I love Tibetan. Moving on to the card, Jack Matthew versus Carlson Harris. Now in this fight I am going with Jack Matthews. मैंने जैक मैथ्यू का अभी जस्ट इस रिकॉर्ड करने से पहले एक फाइट देखा माइकल मोरालेस के साथ, एंड ही वाज गोइंग टो टू टो विद मोरालेस. लाइक ही इज लाइक रियली गुड पंचेस, ग्रेट जैब, बहुत अच्छे से जैब थ्रो करता है, एंड ही इज नॉट लाइक आउट ऑफ हिज प्राइम. I mean, like he is 32, I guess, and Harrison is like 38. Like range अच्छा है हैरिसन का, but man, I don't think कि इतना अच्छा बॉक्सिंग स्किल्स है. जैक मैथ्यू इज लाइक रियली गुड फाइटर, लाइक वेल राउंडेड भी है, एंड आई थिंक he will beat Harris. I mean, like he can easily TKO him the second round, and मैं देख पा रहा हूँ, like I think Matthew will finish Harrison in round 2 and he will TKO him. ज़्यादा इस फाइट में बात करने के लिए है नहीं. Like I think in this fight, first round में like Jack Matthew will like set up the range behind his jab, and he'll pepper with him with his jab, and then फिर right hand land करने लगेगा, right hand over the top, overhand right land करना start करेगा, and I think in the second round he'll land and Harrison will be wobbled and he'll finish him. Moving on to the card, Kai Asakura versus Cameron Smotherman. अब स्मदरमैन को लोग जो नहीं जानते हैं, ये वही है जो कि पिछले UFC 324 में गेची वर्सेस पिमलेट में वेन्स में बेहोश हो गया था. I mean, like he got faint out and rushed to the hospital. फाइट के बारे में बात करें तो काया सुकुरा इज लाइक रियली गुड किक बॉक्सर. दोनों अपने लास्ट दो फाइट हार चुके हैं. काया सुकुरा पेंटोजा के अगेंस्ट में एंड टीम एलियट के अगेंस्ट में फिनिश हो गया था. स्मदरमैन भी लास्ट के दोनों फाइट डिसीजन से हारा है, एंड आई थिंक मैं फाइट देख रहा था अभी स्मदरमैन वर्सेस रिकी समोन, and I think Smotherman has like really good boxing skills, like okayish, but I think Kai Sakura is like really good everywhere. I mean, like not on the ground obviously, but in kickboxing, yes, like he has like बहुत creative knees, elbows, really fast as well, and I think Kai Sakura can finish Smotherman. You know what I'm saying? I'm going with Kai Sakura in this fight. I'm sorry, Kai Sakura in this fight, just because Kai Sakura अच्छे अपोनेंट के साथ फाइट कर चुका है, एंड ही शोड पेंटोजा पे भी एक नी लैंड कर चुका है. ही वाज डूइंग वेल टिम एलियट के फाइट में भी. सो यस मैन, लाइक आई थिंक Kai Sakura हैज अ ग्रेट चांस बीटिंग Smotherman. आई थिंक ही विल बीट हिम. आई थिंक he will not, this fight will go for a distance in my opinion. Moving on to the card, Sergey Pavlovich versus टेलेसन टशेरा. अब टेलेसन टशेरा काफ़ी लंबा है एज कम्पेयर टू पावलोविच, पर हमने इससे टशेरा के लास्ट फाइट में देखा था, व्हाट यू कॉल इट, लाइक ही हैज़ नॉट अ रियली ग्रेट चिन. ड्रेक लुइस ने इसको नॉक डाउन कर दिया था, एंड ही फिनिश्ड टशेरा इन द सेकेंड राउंड इन माय ओपिनियन, मैं जहाँ तक जानता हूँ. एंड you know it very well कि पावलोविच के पास कितना पावर है. लाइक वी डोंट हैव टू टॉक और डिस्कस अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट सर्गी पावलोविच जब से हारा है टॉम एस्पिनाल से, लाइक ही लॉस्ट हिज ऑरा बिकॉज ही इज डूइंग लाइक
बैक टू बैक फाइट हार गया था. व्हाट यू कॉल इट, रेंजी फाइटर के साथ पाव्लोविच को प्रॉब्लम होता है. वी सॉ विथ अलेक्जेंडर वोल्कोव के फाइट में, लाइक वोल्कोव अपना गर्दन के पीछे शव करके ही वाज हाइडिंग हिज चिन, तो पाव्लोविच उस पर लैंड नहीं कर पा रहा था एंड ही पेपर्ड हिम विद द जैब. वही टशेरा के बारे में बात करें तो ही हैज़ अ गुड ब्राज़ीलियन जिu-jitsu and good grappling, but I think Pavlovich has a good chance of beating him, like अगर कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि टशेरा बहुत लीन करके आगे की तरफ रहता है, ठीक है, एंड ही पुल बैक लाइक दिस स्ट्रेट मोशन में, एंड अगर पाव्लोविच तुम पे लैंड करता है देन इट्स अ गुड 90 फॉर यू बिच, ऐसा वाला. I think Pavlovich will beat him. If this will go to the distance, I'm favoring Teixeira, but I think Pavlovich can finish him. अगर वो अपना पुराना Pavlovich लेके आ जाए तो, you know what I'm saying, bro? Like, we want Pavlovich back, bro. You know, heavyweight division sucks these days. I think Pavlovich अगर mix में रहेगा then it will be a good heavyweight division. Moving on to the card, Zhang Mingyang versus Alonzo Menifield. अब Mingyang last fight हार के आ रहा है against Johnny Walker with the leg kick, and Menifield is like very, don't get me wrong, he's like really stocky fighter, but आई थिंक उसको लास्ट फाइट में उज़दुमिर ने फिनिश करा है, उससे पहले उल्बर्ग ने फिनिश करा है, मुर्ज़कानव, एवरीबडी फिनिश्ड हिम, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक, एंड ज़ैंग मिनयांग हैज़ अ पावर, लाइक ही इज़ वेरी nasty with the power, like good elbows, good knees, not great leg, but Menifield भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि like he's really, you know what I'm saying, like really good leg kicker or something like that, and I think Zhang Mingyang will finish Menifield. I mean, like, this fight is not going to distance, that's for sure. I'm putting my money on it, though I don't put my money. Yeah man, that's like बहुत ज़्यादा इस fight में भी बात करने के लिए कुछ नहीं. I mean, like these days, like this fight card is shittier and shittier. Moving on to the card, this is interesting. Main event, Song Yudong versus Davison Figueiredo. Davison Figueiredo, like former flyweight champion 2 times, like a good fight against what do you call it, Umar Nurmagomedov. उससे पहले लाइक गुड फाइट विद पीटर यान, बट ही लॉस्ट बोथ ऑफ देम. सॉन्ग युडोंग के बारे में बात करें, गुड फाइट विद ओमैली फर्स्ट सेकंड राउंड, तो एटलीस्ट इट वाज लाइक अ मोमेंटम जब तक शिफ्ट नहीं हुआ था, एंड ही लॉस्ट. आई थिंक सॉन्ग युडोंग हैज अ गुड पावर टू पुट डेविसन फिगरेटो अवे. आई मीन, लाइक ही हैज अ गुड पावर टू डू दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. In this fight, I think age will be the factor. I think Figueiredo has a really good speed, and Song Yudong has a really good power. So it's a power versus speed. पर फिगी जैसे जैसे एज में बड़ा हो रहा है, इसका स्पीड जा रहा है, जैसे जैसे वो सेटल कर रहा है बैंटम वेट में, क्योंकि जब वो शिफ्ट करा था, व्हाट डू कॉल इट, फ्लाईवेट से बैंटम वेट में, देन he was like really fast for everybody, you know, he was beating 3 fights or 4 fight के winning streak, 3 fights के winning streak पे भी आया था. So in my opinion, I think Song Yudong will beat him like decision से. फाइट के बारे में बात करें, सॉन्ग जैब के पीछे फाइट करेगा एंड he'll land some good elbows, body shots, you know. फिगी grappling exchange कर सकता है, but Song Yudong has a like really good takedown defense as well. I don't know, man. In this fight, I am dicey. I'm leaning towards Song, but Davison Figueiredo will also like he can beat Song Yudong. If he'll beat Song Yudong, then man, that will be a what do you call it? Like good for Figgy, man. Like अच्छा resume हो जाएगा, you know, young fighter Song Yudong को हरा देगा तो. Yes, guys, this is it for this fight card. Let's talk about Pooja Tomar and Shi Ming. एंड आई थिंक शी मिंग विल बीट पूजा तोमर. अब बहुत लोग को बोलेंगे कि अपने फाइटर को तुम लोग बैक नहीं करते हो, दिस एंड दैट. लुक व्हाट हैपेंड टू लाइक यस्टरडे वाले फाइट्स में. शी मिंग इज अ गुड फाइटर एंड सो डज पूजा तोमर इज, ठीक है, पर पूजा के साथ प्रॉब्लम ये है, शी इज लाइक रियली बॉक्सी. अगर वो स्मार्टली फाइट करेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम एक UFC लेवल पे फाइट करने पे जब आते हो तो यू जस्ट कांट, यू नो, हा करने से काम नहीं चलता. यू आर नॉट फाइटिंग इन इंडिया, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एट द ग्लोबल स्टेज, ठीक है, और क्या कहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यू आर डूइंग इट. सो यू डोंट हैव टू बी, यू नो. पूजा तोमर के बारे में बात करें, रियली गुड स्ट्राइकिंग, बट शी इज़ बॉक्सी, 2 पंच एक साथ थ्रो करती है, एंड आई थिंक दैट विल बी अ यू नो डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस फाइट, जो कि मेरे को कोरेंग के साथ भी लग रहा था. पर कोरेंग वाज स्मार्ट इनफ, ही वाज नॉट थ्रोइंग, यू नो, बहुत रेकलेस शॉट्स, ही वाज थ्रोइंग लाइक प्रिसाइज शॉट्स जैब के पीछे, एंड देन ही वाज लैंडिंग क्रॉस, एंड बहुत टेक्निकल फाइट कर रहा था rather than just a brawl, you know what I'm saying.
एंड आई थिंक अगर पूजा उस तरीके से फाइट करती है और शीमिंग का अगर टेक डाउन डिफेंस अगर टेक डाउन अगर रोक लेती है, देन आई थिंक पूजा विल बीट शी। बट आई डोंट थिंक सो पूजा तोमर के साथ ये है। पूजा तोमर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शी इज़ लाइक रियली शी लैक्स ग्रैपलिंग एंड स्किल्स। हमने देखा था व्हेन शी गॉट द हेड किक नॉकडाउन, इट वाज नॉट अ नॉकडाउन, बेसिकली उसने नॉकआउट ही कर दिया था, बट शी वोक अप एंड ही चोक्ड हर आउट। सो दैट्स द थिंग अबाउट टैप हर आउट। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो लाइक कल का फाइट देखने के बाद अगर टेक्निकली अगर फाइट करती है तो पूजा तोमर कैन क्रैक यू नो शीमिंग, लाइक शी कैन। फाइट होगा लगभग 6 बजे 6:30 बजे के आसपास में, 6 बजे के आसपास में फाइट होगा। तो या यू गाइस कैन वॉच इट ऑन सोनी लिव। बात करें कल के बारे में तो obviously Koreng won the fight and like he proved me wrong as well because I was thinking कि range से बहुत ज़्यादा problem होगा, but I was really happy and I think कि अपना grappling से वो pressure डाल सकता है and that's what he did। बात करें like मेरे लिए पास ज़्यादा बात करने के लिए Koreng के लिए है नहीं because I have to watch him थोड़ा सा ज़्यादा एक सेमीफाइनल्स में। बट रविंद्र दांत ब्रो, मैं जब उसकी फाइट देख रहा था मैंने कहीं से कहीं तक फील नहीं किया कि आई वॉज वॉचिंग रोड टू UFC और सम फाइटर जो कि बहुत रेकलेस पंचिंग करते हैं। ही वॉज फाइटिंग वेरी टेक्निकल, बहुत अच्छे से ट्रांजिशन कर रहा था, व्हाट यू कॉल इट, बैक माउंट, फ्रंट माउंट, साइड कंट्रोल, ही वॉज फ्लोइंग। मैं सच बताऊँ फाइट देख के मेरे को लग रहा था कि आई वॉज वॉचिंग सम UFC फाइट नाइट का मेन कार्ड का इवेंट या फाइट कार्ड का मेन कार्ड का इवेंट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। क्राउड पीछे था, लाइक इट वाज अ गुड एनर्जी फॉर दांत मैन, लाइक आई सॉ प्रॉस्पेक्ट इन हिम, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मेरे को ऐसा लगता है UFC में अगर वो साइन होता है देन ही विल फाइट एंड ही विल विन द फाइट मैन, लाइक ही इज अ गुड फाइटर, ही इज अ गुड फाइटर, ही विल पॉलिश हिज स्किल्स। अभी बहुत यंग है, 28 साल का, एंड आई थिंक ही कैन इन द रविंद्र दांत हरा देगा कोरेंग को अगर उनका वापस से रीमैच होता है स्किल गैप की वजह से, बिकॉज लाइक रविंद्र दांत लाइक टू गुड ऑफ अ स्ट्राइकर। अगर तुम उसके सामने बॉक्सी हो गए देन ही लैंड सम यू नो क्रैकिंग शॉट ऑन यू, यू नो व्हेन यू आर स्विचिंग स्टंसेस एंड यू आर थ्रोइंग सम रेकलेस शॉट। एनीवे गाइस, व्हाट डू यू गाइस रियली थिंक? आपको मजा आया कि नहीं कल का मैच देख के? मेरे को कमेंट करके बताना। एंड इस फाइट कार्ड में आप किसको पिक कर रहे हो मेरे को वो भी कमेंट करके बताना। एंड आई डू लाइव फॉर पूजा तोमर, तो वो भी आके आप चेक कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक MMA कंटेंट इन इंडिया, सब्सक्राइब ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।